नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह हमें हक़ का हक़ होना दिखा दे और उस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे, और हमें बातिल का बातिल होना दिखा दे और उससे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। And today we will do Surah Qadr. It's a Makki surah and it has 5 verses. I will start by reading all of the translation together. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna anzalna fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alfi shahr. من تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. In the name of Allah, the Beneficent, the Most Merciful, verily we revealed the Quran on the night of Qadr. Do you know what is the night of Qadr? The night of Qadr is better than 1,000 months. The angels and the Ruh descend with every decree on this night by the command of their Lord. It is full of peace and lasts until the break of dawn. Now, the central theme of Surah Qadr is the night of power and decree. Okay. And of the Quran. The time of revelation is between 0 to 3 Nabwi. And if we look at it in 2 parts, then broadly it talks about the night of power is better than 1,000 months, and the peace and that the tranquility that descends on this night is described in this surah. So if we look at the first ayah where Allah says, Inna anzalnahu. Inna means beshak hum. Acha. Now, beshak hum ke andar, this is a plural pronoun. In Arabic, inna is, when it's saying hum, there's a plural pronoun in it, but this is Allah's speech. So when Allah is saying hum, then before I've explained this is referred to as the royal we. जैसे बादशाह बात करे और बादशाह कहे कि हमने डिसाइड किया है, या हमने ये बादशाह के कलाम के लिए एक रॉयल वी यूज किया जाता है. It's one person speaking, but he's referring to himself as inna. Why? This is to show Allah's majesty and it shows Allah's power. But remember that in the Quran, wherever the ahkam, wherever tawheed is going to be described, तो हमेशा जो है वो singular में आएगा, me. Or wherever Allah is talking about ibadat karo, singular, meri ibadat karo. At that place, inna is not going to be used. Here, inna is used to show Allah's majesty and power. And then anzalna. Anzalna ka matlab hota hai that all of it came down together. Within the Arabic grammar, anzalna, inna anzalna fi laylatul qadr. Anzalna, acha anzalna hu bhi hai. Abhi I'll talk about the who also. But anzalna means it came down together in one night. अच्छा, अब ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि we did in the last class, in the previous class, we had talked about the Quran being in the Lawh Mahfuz with Allah, and then Allah sending it down as a wahi. So what happened was when Allah decided to bring down the wahi, bring down the Quran, He brought it down to the first sky altogether. Allah's arsh is on the 7th sky. The Quran, the 30 paras that we have in our hand, all of it was brought down to the first sky on Laylatul Qadr. This is the night of Qadr. And then from this first sky, it was brought down bit by bit over a period of 23 years on the heart of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then remember I said it's saying inna anzalna hu. So who is referring to who ki zamir kiske paas ja rahi hai? Humne utara usko. This is what it's saying. हमने उतारा उसको, लेकिन किसको नहीं कहा अल्लाह ने. Allah did not write inna anzalna fi Quran या al Quran कि हमने उतारा कुरान को. Why is the word Quran not mentioned over here? I want you to understand the importance of this. ये जो who की ज़मीर है सबको पता था. Everybody in Makkah was just talking about the Quran. तो जब वो ये आयत सुन रहे थे, उनको पता था अल्लाह ने किसको उतारा है. अल्लाह ने इन्ना अंजलना हु जो कहा है, everybody knew that
this is the mention of the Quran. Why? Because every foe and every friend was already talking about it. Everybody was talking about the Quran. It was so popular that they didn't even need to say कि Quran नाजिल किया अल्लाह ने. This ayat doesn't say Quran नाजिल किया, but it is understood. अच्छा, अब ये मैं आपको कैसे समझाऊं? For instance, what's very popular right now is, for instance, if me and you are sitting in a room and every room has an AC. It's everybody knows. अगर मैं कह दूं कि ये बहुत तेज हो गया, इसको आहिस्ता कर दो, तो सबको समझ में आ जाएगा कि AC तेज हो गया, सर्दी ज्यादा. I don't need to say AC को आहिस्ता कर दो. You understand? Because it's already there in your subconscious. You are already aware of it. Everybody was aware of the Quran. And then qadar में क्या है? Inna anzalna fi laylatul qadr. Now qadar में it's the night of decree. qadar का मतलब क्या है? The night of decree, which means कि the original तकदीर, अब ये भी समझ लें, it is written in लौह महफूज. अच्छा, अब तकदीर कब लिखी गई थी? ये मैंने बहुत दफा आपको क्लास के अंदर बताया है. When was our तकदीर written? This is the most beautiful thing that I found about तकदीर is, कभी भी मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती ना, ओहो अच्छा ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, फिर मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ that तकदीर was written by my Rabb, subhanallah, subhanallah, 50,000 years before Allah created the universe. अल्लाह ने तकदीर लिख दी थी, सुभान अल्लाह. अच्छा, उसके अंदर you see एक personal contact बनता है. Sometimes we become so involved in the dunya that we think अच्छा हम दुआ मांग रहे हैं, पता नहीं अल्लाह सुन रहा है कि नहीं सुन रहा. अब understand, जब तकदीर लिखी मेरी अल्लाह ने, तो अल्लाह मेरा नाम जानता है. जी हाँ जानता है, वो मेरा रब है. अल्लाह मुझे पर्सनली जानता है, मेरे ट्रेड्स को जानता है, मेरी पर्सनालिटी को जानता है, मेरे दिल को जानता है, बिल्कुल जानता है. रब ने तो 50,000 साल पहले कायनात बनाने से पहले लिख दिया था कि मेरी तकदीर क्या है, with my name, with my age, who's going to be my children, whether I'm going to get married or not. Whether, you know, some people they don't get married, वो सारी जिंदगी इसी गम में गुजार देते हैं कि वो हमारी तो शादी नहीं हुई. रब ने नहीं लिखा तकदीर में, उसमें कोई बेहतरी होगी, लेकिन रब ने, you see what happens is, okay, छोटी सी एग्जांपल, if your child falls down, माओ के लिए तो सबसे बड़ा गम यही है ना, अल्लाह हमें बड़े गमों से बचाए, क्योंकि हमारे पास तो ना सब्र है ना हमारे दिल, छोटे छोटे से तो हमारे दिल है कॉकरोच जितने. अब बच्चा गिर गया और क्या हुआ, सर फट गया, खून निकल आया. व्हाट हैपेंस, व्हाट्स आवर रिएक्शन? हाय अल्लाह, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, बेहोश हो रहे हैं, गिर रहे हैं. अब सोचें कि वो तकदीर में, अगर if you connect your mentality to this कि तकदीर में अल्लाह ने लोहे महफूज में कब लिखा था, कायनात बनाने से 50,000 साल पहले लिखा था, तो खुद सोच के ही अल्लाह ने लिखा था. घबराने की जरूरत नहीं है. घबराहट खत्म हो जाती है when you trust Allah and when you hand yourself over to Allah. और तकदीर किसकी लिखी? Mine and yours, everybody's. Now another thing which is written in लोहे, let me explain this in another way. एक तो मेरी आपकी पर्सनल लाइफ स्टोरीज ये लिखी हुई अल्लाह ने तकदीर के अंदर, ठीक है. फिर कयामत तक how much rain is going to fall on the dunya, subhanallah, it is already written in the Lawh Mahfuz. Then who will be born this year, who will die this year, ठीक है, ये सब डिक्री के अंदर आता है. ये जो है ना कदर, लैलतुल कदर, कदर के अंदर क्या क्या डिक्री कर दिया है अल्लाह ने. Now all of this is written in Lawh Mahfuz, and you can imagine Lailatul Qadr being as the administrative night where the decree is handed over to the angels. For instance, the decree of this year, ये जो शब कदर थी 2020 to 2021, लैलतुल कदर पे क्या नीचे आया होगा डिक्री के अंदर, किसका कितना रिस्क है, फरिश्तों के हवाले कर दिया. Who will be born in this year, who will die in this year, who will get married in this year, how many millimeters is rain going to fall in which place in the year between 2020 and 21. All of this is handed over to the angels. For instance, Mikail alayhi salam we know is the angel of rain, ठीक है. Now in each place during this year, चले हम, let's think about Karachi. How many millimeters of rain is going to fall in Karachi between 2020 to 2021? This was handed over to Mikail alayhi salam on the night of Qadr, Shab Qadr में, ठीक है. तो the other explanation of Qadr is that ये काबिले कदर रात है, बहुत very important, very powerful night, ठीक है. And
the one who does good deeds in this night is rewarded so much, so much. One namaz is rewarded what? Multiplied by 1,000 months. And another meaning for qadar is also constriction. Arabic के अंदर constriction की जगह तंग हो जाती है. अच्छा, जगह तंग कैसे होती है? इतने फरिश्ते उतरते हैं जमीन के ऊपर. I want you to imagine, it's packed. This night is packed. The angels have come down to earth and there is no space left on earth. It has become a night of qadar because पूरी की पूरी वो सारे फरिश्ते नीचे आ गए हैं ना, and they're on planet earth now. Another explanation is qadar also means value and estimation. ठीक है? And this is one of the most beautiful tafsirs I find of qadar. अल्लाह की नजर में मेरी क्या वैल्यू है, मेरी क्या कदर है, वो पता चल जाएगी किस रात को? इस रात को. लैलतुल कदर को पता चल जाएगा मुझे कि मेरी क्या वैल्यू है अल्लाह की नजर में. Where do I stand? Am I sleeping the night away or am I standing in ibadah? Because ibadah cannot be done without Rabb's help. Has he made me stand in front of him and worship him all night? तो फिर तो जबरदस्त हुई ना कदर, अल्हम्दुलिल्लाह. And or am I busy watching TV and movies on Netflix? How did I spend Laylatul Qadr? And then ayat number 2 के अंदर वमा अदराका मा लैलतुल कदर. I want you to understand वमा अदराका मा लैलतुल कदर. It's like it's a question, and question, did you understand? तुम्हें कोई अंदाजा है कि ये क्या रात है? ये ऐसे पूछा जा रहा है to inspire. तुम्हें पता चल गया ये क्या रात है? तुम काम के लिए लग गए? Are you ready to give it your all? Because this is inspirational. But आयत नंबर 3 के अंदर अब आ रहा है क्या है लैलतुल कदर. लैलतुल कदर खैरुम मिन अल्फ शहर. It is better. The night of Qadr is better than 1,000 months. Now first I'm going to refer to the ahadith where Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it is reported by Abdullah bin Abbas that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam once told about a person from Bani Israel who carried the weapons of jihad on his shoulders for 1,000 months. Hearing this, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam prayed to Allah, saying, "O my Lord, you have granted my ummah shorter lifespan than the previous nations, because of which their deeds are less. Consequently, Allah Ta'ala allocated the night of Qadr, the virtue of which exceeds that of 1,000 months." What is 1,000 months? 1,000 months is 83 years. देखिए पिछली कौमों की तो बहुत लंबी लंबी जिंदगियां थी, तो उन्होंने इबादत भी पूरी पूरी जिंदगी की, जिहाद भी किया. They earned a lot of good rewards. And आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is saying मेरी उम्मा की तो on an average, what is our lifespan? 50, 60, 70 years? If you're eating healthy and eating right, जितनी अल्लाह ने लिख दी है, but on an average, not more than 60, 70 years. This is our lifespan. How can we achieve 83 years of ibadah when we're not even going to be on planet Earth for 83 years, right? So, we have to understand then what is this Laylatul Qadr that Allah gave us, because this is amazing. I've spoken about it a lot in Ramzan as well, because I wanted you all to really work for it, and I wanted us to be inspired to find Laylatul Qadr. Now, why is it so important to understand? Allah is saying that it is better than 83 years, which means 83 years is already more than my lifespan. मैं सारी जिंदगी अगर इबादत करूं तब भी मैं 83 इयर्स की इबादत नहीं अचीव कर सकूंगी. Why? Because नमाज फर्ज कब होती है? नमाज फर्ज होती है when we hit puberty around 12, 13, ठीक है? और अगर 70 साल में मर गए तो फिर 83 इयर्स तो नहीं मिले आपको इबादत के दुनिया के ऊपर, ठीक है? And also when you turn old age में बहुत ज़्यादा इबादत नहीं की जाती है. You can't stand for long nafals, you can't do a lot of इबादत. तो old age निकाल दें और यंग एज निकाल दें, तो बीच में मिला क्या हमें? 40-50 साल इबादत करने के, जिसके अंदर आपके पास स्ट्रेंथ हो इबादत करने की. उसमें भी करते हैं नहीं करते, और किस वैल्यू की हम इबादत करते हैं, किस क्वालिटी की हम इबादत करते हैं, वो तो हम खुद जानते हैं. कैसी हमारी नमाजें, कैसी हमारी जिक्र, कैसी हमारी इबादत है. तो फिर अंडरस्टैंड. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. Allah has given us this one night, ठीक है? अच्छा, even if you do ibadat in your life, you cannot be reading namaz 24 hours a day. अगर आपने 50 साल नमाज पढ़ी तो दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ी होगी. I want you to understand the math of this.
जब हम मैथ समझेंगे तो इंशाल्लाह हम लैलतुल कदर की कदर करेंगे। नाउ अंडरस्टैंड, मैं अगर 50 साल इबादत करती हूँ, मैं कहती हूँ मैंने नमाज पढ़ी है, 50 साल नमाज पढ़ी है, अल्लाह करे हम सबको अल्लाह नमाजी बनाए, तो तब भी मैंने दिन में 5 दफा ही नमाज पढ़ी होगी, या तहज्जुद में ला लें 6 दफा पढ़ी होगी, उससे ज्यादा तो मैंने नमाज नहीं पढ़ी होगी। अब समझें, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू स्टैंड इन नमाज 24 hours a day। लैलतुल कदर क्या है? लैलतुल कदर इज वन नाइट। आपने इस रात में जो इबादत की, जो इबादत, इफ यू रेड नमाज इन लैलतुल कदर, इफ यू रेड कुरान इन लैलतुल कदर, इफ यू डिड सदका इन लैलतुल कदर, इफ यू डिड तस्बीह एंड जिक्र इन लैलतुल कदर, then how is the sawab and the neki and the good deed, how is it written in your amal nama? It's not that you did it one time, but when Allah is multiplying it by 83 years, now understand, one namaz multiplied by 83 years multiplied by 24 hours a day. This is how Laylatul Qadr is written. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ek namaz Laylatul Qadr ki, Allah will write it like I read namaz 24 hours a day, 7 days a week for 83 years non-stop. Subhanallah, Subhanallah. इसको तो कहते हैं लैलतुल कदर तो लॉटरी है, ये तो मोमिन की लॉटरी है, ये तो it's not something. Then if I read namaz, if I read Quran, then Allah will write the Quran as me reading Quran for 83 years, 24 hours non-stop without a minute's break. If I gave sadqa on Laylatul Qadr, Allah will write it as 24 hours a day for 83 years non-stop. मैं sadqa दिए चले जा रही थी. Now understand, as a human being, मेरी capacity नहीं है, I cannot achieve what Allah is writing to me on Laylatul Qadr would have been impossible for me to achieve in my life. So Allah has given it to me as a mercy, as a raham for trying. Just trying. Find that one night that multiplies by 83 years. कुर्बान अपने रब की शान पे, कुर्बान रहम देखें अल्लाह का कितना मेहरबान रब है, because he knows we're so weak. कितने तो हम निकम्मे हैं, we couldn't have managed this. And then even people who don't strive for the whole year, there are some people, उनकी नमाजें इतनी नहीं होती, वो इतना उनका सदका नहीं होता, इतना पूरा साल में कुरान नहीं पढ़ते. Even for them Allah is saying, एक रात तो रमजान की ढूंढ सकते हो ना लैलतुल कदर, ढूंढ लो. I will multiply it by 1,000 months. I will multiply it by 83 years. So this is something that really every single Muslim needs to get into Jannah. And we need to strive for it. And when do we strive for it? In the end of Ramzan. Now, also the ulama, now another tafsir. I told you we're going to get a little deep into the maths. The ulama say that 83 years that are mentioned for Laylatul Qadr, the multiplied by 83 years जो उन्होंने कहा है, वो ये कह रहे हैं कि 83 years के अंदर रमजान दोबारा आएगा. So then the ulama say that when Ramzan comes within those 83 years, you will get another Laylatul Qadr within that Ramzan of those 83 years. Therefore, now you are multiplying one namaz multiplied by 83 years, multiplied by 83 years again, subhanallah, for every Ramzan. 83 years multiplied by 83 of every year that you got. क्योंकि वो जो 83 years थे उसमें भी तो लैलतुल कदर आएगी ना. अब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इसको कहते हैं अल्लाह देता है छप्पड़ फाड़ के देता है. We cannot imagine because Allah is infinite. हम उसकी मर्सी का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अल्लाह कैसे दे रहा है हमें लैलतुल कदर. And then there is another opinion of the मुफस्सिरीन which is even more beautiful. वो मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि अल्लाह जो अजर दे रहा है ना, these 83 years that Allah is giving of लैलतुल कदर, वो कहते हैं the whole of the 83 years that Allah is giving, every month is Ramzan. Every month is Ramzan. अब मेरी maths fail हो गई. अब I cannot even tell you, we're multiplying 83 by 83 by 83 by 83. It's like a house of mirrors. Infinite बन जाता है सवाब. Infinite सवाब एक लैलतुल कदर का. अल्लाह करे कि मुझे और आपको एक लैलतुल कदर तो नसीब हो जिंदगी के अंदर, कि हमारी जिंदगी बदल के रह जाए.
इतना अमेजिंग इसका सवाब है, इतनी अमेजिंग. नाउ दिस इज नॉट, सवाब इज नॉट ओनली बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 83 years, बट इन दिस ओपिनियन इट इज मल्टीप्लाइड एंड कंपाउंडेड. जैसे इंटरेस्ट में होता है ना, मल्टीप्लाइड इंटरेस्ट एंड कंपाउंडेड इंटरेस्ट, इस तरह सवाब के अंदर मल्टीप्लाइड एंड कंपाउंडेड द सवाब ऑफ 83 years of Laylatul Qadr. It's so precious. It's so precious. I can't even begin to touch the tip of the iceberg. And then the date is not given. इसके अंदर भी बहुत हिकमा है for not telling the date. You see, Muslims have been told search for it in the last 10 nights. ठीक है, अब इबादत करें, नेकी का शौक है. अब जब पता चल गया लैलतुल कदर क्या जैकपॉट है, तो ढूंढनी तो है ना आखिरी 10 रातों में. अब निकम्मे तो नहीं हम रह सकते. And if the exact date was given, and if some people would not have valued it, if they would have spent it sleeping, for instance, nauzubillah, and they wouldn't have done ibadah, then they would have been the greatest of losers. उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता. और कुछ उलमा का ओपिनियन ये भी है that Laylatul Qadr rotates. Every year it will rotate, which means इसको ढूंढना है कब. शब कदर की रातें, एक हदीस का ओपिनियन आता है ना कि ताक रातों के अंदर ढूंढना है, तो सम उलमा से कि किसी रमजान 21st को आएगी, 21st रमजान को. सम रमजान इट विल रोटेट ऑन टू द 23rd, 25th, 27th, 29th. वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि उसने ये अमेजिंग लॉटरी की लैलतुल कदर की रात कब रखी है हमारे लिए. ठीक है, सम उलमा, अगेन इट्स अ वेरी पॉपुलर ओपिनियन कि 27th is the night of Laylatul Qadr. Close to some ulama, 23rd is a very popular. Again, these are all based on findings, based on ahadith, where they're searching for which one is the most possible to be Laylatul Qadr. But then again, at the end of that, the ulama say, what? Wallahu alam. जब वल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है खुद, तो हमने क्या करना है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तलाश करो इसको, ढूंढो इसको. देयर इज नॉट अ फाइनल स्टेटमेंट कि कौन सी फाइनल रात है. ठीक है, एंड ऑड नाइट्स हैव बीन गिवन इन द अहदीस. अच्छा, इन रमजान वी नो दैट द कुरान केम डाउन. प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है कि सर्च फॉर इट लैलतुल कदर इन द लास्ट नाइट्स ऑफ रमजान. लास्ट नाइट्स ऑफ रमजान किधर है? लास्ट 10 नाइट्स किधर है? 21st to 30th. This is the time when you tighten your belt and you increase in ibadah and you can't waste it in the bazaar. सोचिए, लैलतुल कदर हम डॉलमेन मॉल के अंदर जाके वेस्ट कर देंगे, और लैलतुल कदर जो मेरी जन्नत खरीदने की रात है वो मैं जूते खरीदने में गुजार दूंगी या मैं लेसे खरीदने में गुजार दूंगी. ये दिस इज नॉट पॉसिबल. This is how Quran changes your mentality and it says, hey, hold on, I cannot waste these 10 nights. मैं इन 10 रातों में ना सहरियां कर सकती हूँ, ना मैं इफ्तारियां कर सकती हूँ, ना मैं बाजारों में घूम सकती हूँ. सारे काम पहले खत्म कर लें. ये आखिरी 10 रात तो मुझे चाहिए, मुझे लैलतुल कदर चाहिए. एंड आप अपनी सारी शॉपिंग रमजान से पहले भी तो खत्म कर सकते हैं. मुझे बताएं, why is it that Pakistanis particularly act like हमें पता ही नहीं है कि 30वें रोजे के बाद जो है वो ईद का दिन आएगा. हमें ऐसे लगता है जैसे चांद रात पे ही पता चलता है, ओ कल ईद होगी. ओ माय गॉड, आई डोंट हैव शूज, आई डोंट हैव क्लोथ्स, आई डोंट हैव दिस, दुपट्टे की लेस रह गई. मास्टर साहब के पास भागता है. सब कुछ चांद रात पे क्यों होता है? चांद रात के ऊपर क्या हो रहा होता है आपको पता है? सवाब मिलता है. पूरी रमजान की जो मेहनत की है, पूरी रमजान की जो मेहनत की है, उसकी नेकियां, उसका अमाल आपको मिल रहा है चांद रात पे. एंड नाउजुबिल्लाह, सम पीपल दे स्टार्ट देयर पार्टी ऑन चांद रात. वो कहते हैं खत्म हो गया रमजान, इट्स टाइम टू ओपन अप द बॉटल्स, इट्स टाइम टू पार्टी नाउ. क्या उन्होंने अपने रमजान के साथ किया और क्या उन्होंने अपने अमाल के साथ किया, आप सोच सकती हैं. तो ये जो आखिरी 10 रातें हैं, ये यू हैव टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, यू हैव टू प्लान फॉर इट. इफ समवन वर्क्स देन यू कैन स्टे अप पार्ट ऑफ द नाइट्स, ऑड नाइट्स, 10 odd nights, concentrate more on the odd nights. ठीक है. And then एक सुन्ना में ये भी है, the last 10 nights, the last 10 days of रमजान के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ में बैठ जाते थे, डे एंड नाइट वो इबादत करते थे. अगर आप नहीं कर सकते, if it's not possible for you to sit in एतकाफ, then focus on Allah one part of each night or the whole night. Focus on Allah. अच्छा, and नाउ आयत नंबर 4 to 5 के अंदर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीही बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन, इज़्नी रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन
Salamun hiya hatta matla'il fajr. अच्छा, अब ये क्या है? The angels and the root descend with every decree on this night by the command of their Lord. It is full of peace and lasts until the break of dawn. Angels makhluk kahan ki hai? They live on the skies. Okay. They live on the skies and there are billions and trillions of angels. Hadith ka mafhum aata hai that within the 7 skies there is not a hand span. कितना? इतना. एक हाथ की जगह. इतनी जगह भी खाली नहीं है. There is not a space even this much empty where an angel is not doing ibadah of Allah. Subhanallah, subhanallah. And then Allah is saying tanazzalal. Tanazzalal is that they are coming down, these angels. Arabic के अंदर इसकी meaning आती है in groups. They're coming down in batches and there are lots and lots of batches coming down. Lots and lots of groups coming down till when? Till Fajr. So one by one, these groups are coming down. अब आप सोचें ना किस तरह मैं आपको समझाऊं. Like a tour, there are batches. Tour guide के साथ tour के पूरे groups नीचे आ रहे हैं. कहाँ आ रहे हैं? दुनिया के ऊपर आ रहे हैं. अच्छा, and then बिइज़्न ही फजर तक आ रहे हैं. And who comes down also? Arru. Arru is the Sardar of the angels, Jibrail alayhi salam. He is also coming down on Laylatul Qadr. And then bi'izni. बिइज़्नी के अंदर with the permission of Allah. बिइज़्नी के अंदर क्या है? इजाजत से अल्लाह की. इसका मतलब है angels गए अल्लाह के पास. It's like angels को शौक है. They want to come down to the दुनिया. And so they go and they ask Allah बिइज़्निही. अल्लाह से इजाजत ली उन्होंने. Allah give us permission. With Allah's permission, then they come down to the dunya. They want to come down. Why? Angels, they want to visit earth, so they ask for Allah's permission and they request. इसके अंदर बिइज़्नी के अंदर आपको शौक पता चल रहा है. इनको शौक है. They want to see. Who do they want to see? ये आपको क्या लगता है बुर्ज खलीफा देखने आ रहे हैं angels दुनिया के ऊपर? No. Angels को शौक है मोमिन देखने का. Angels को शौक है अल्लाह की नेक बंदे देखने का. Angels को शौक है they want to see इबादत गुजार on the दुनिया. Even Arru, जिब्राइल अलैहिस्सलाम. अच्छा, क्यों है ये बात समझ लें. Angels को अल्लाह से बहुत मोहब्बत है. बहुत मोहब्बत है. जिसको अल्लाह से मोहब्बत होती है, जो मखलूक अल्लाह से मोहब्बत कर रहा होता है, आपको उससे मोहब्बत हो जाती है. It's as simple as that. When you are in love with Allah, then anyone that is loving Allah, you respect and you love them. There's no question about it. ठीक है? फिर मिन कुल्ले अमर. उतरते कैसे हैं? With every decision. ये तो होगी ना, हमने डिक्री कह दी कि लैलतुल कदर के अंदर सारी डिक्री उतरती है. With every decision from this Laylatul Qadr to next Laylatul Qadr, everything that is going to come down onto earth is brought down within this decision of Qadr. And then Salamun. Now, दो meanings है इसके. Salamun hiya matla'il fajr. Salam के अंदर maybe two opinions. One opinion is कि रात ही सलामती की है. There is a peace in this night. Some of the mufassirin, when they look for, वो निशानियाँ बताते हैं लैलतुल कदर की. And when they look for the निशानियाँ of लैलतुल कदर, एक तो वो कहते हैं कि ये आपको कुत्ते भौंकने और जानवरों की आवाज़ें नहीं आती हैं उस रात में. वो रात थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, थोड़ी सी काम होती है. You can feel it. You can feel goosebumps. ये अब वल्लाहु आलम, अल्लाह वाले ही बेहतर जान सकते हैं. हम तो इतनी ढीठ, हमारी तो स्किन ही कोई पता नहीं एलिफेंट जैसी, हमें कोई पता ही नहीं चलता है, इतने हम ढीठ हैं. लेकिन मुफस्सिर जो है अल्लाह वाले, वो ढूंढते हैं इस रात को, पहचानते हैं इस रात को कि इस रात के अंदर वो निशानियां हैं कि नहीं है. क्योंकि वो हर रात ही ढूंढ रहे होते हैं ना लैलतुल कदर को. वो तो हर रात इबादत कर रहे होते हैं. Another meaning is that the farishtas, they say salam to the moment. Subhanallah. Ali Razi Allah Anha says, riwayat ke andar hai ki that the angels, they come down and they do salam and they pray for your maghfirah from Allah. Now I want you to imagine this. जब फरिश्ते नीचे उतरते हैं और वो देखते हैं आपको लैलतुल कदर में इबादत करते हुए. एक तो लैलतुल कदर on its own, I told you, लॉटरी है ना लैलतुल कदर. तो 83 years multiplied by 83 years multiplied by 83 years. एक तो ये मिल रही है मोमिन को. No, that's not enough. Allah said, sent his farishtas down.
He sent his angels down. And then Allah said, जाओ देखो मेरा कौन बंदा है, मेरी कौन बंदी है जो खड़ी है जानमाज पे, जो रो रही है, जिसको जन्नत चाहिए, जाओ और जाके उसके लिए वो दुआ करते हैं एंजल्स। अब अल्लाह तू इसको बख्श दे, अल्लाह तू इसको बख्श दे, सुभान अल्लाह। Now, if we found out that the president of our country is coming to visit us at night in our house, would we feel sleepy? हमें नींद आएगी? हमें तो शायद उससे 4 रातों पहले नींद उड़ जाएगी कि ओहो प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं मेरे घर, डस्टिंग कराओ और क्रॉकरी निकालो और कटलरी निकालो और कर्टन्स ड्राई क्लीन कराओ। ये सब तैयारियां होती है ना प्रेसिडेंट साहब की। प्रेसिडेंट साहब की कोई वैल्यू नहीं है। कौन आ रहा है लैलतुल कदर पे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम इज कमिंग डाउन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। Feel the weight of this. Jibrail alayhi salam is coming down to my house. And Jibrail alayhi salam is praying to Allah for me. Allah is inspiring us. Really. Jibrail alayhi salam हर इबादत करने वाले से हाथ मिलाते हैं, मुसाफा करते हैं. Not the ones who are sleeping. Not the ones who are talking. Not the ones who are having sehri parties. The one who is personally, this is why लैलतुल कदर के लिए कहते हैं कि ये पर्सनल इबादत का टाइम है। इसमें आप अकेले कहीं बंद हो जाए अपने घर के अंदर और बस इबादत करें, आप अपने बच्चों को करवाएं, बट दिस इज अ पीसफुल टाइम। ये आप जो है, I can't even explain it. What would it be like? We can't see him, but what Allah is saying is Jibrail alayhi salam comes down and वो आपसे हाथ मिलाते हैं। जो अल्लाह का मोमिन बंदा अल्लाह की इबादत कर रहा है लैलतुल कदर पे, हाथ मिलाते हैं और जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाए। इमेजिन करें, व्हाट एन ऑनर। एंड उलमा से दैट इफ यू गेट गूसबम्प्स ऑन दिस नाइट लैलतुल कदर एंड इफ यू क्राई अ लॉट, इफ योर हार्ट फील्स वेरी सॉफ्टेड, तो फिर ये भी एक निशानियों में से है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मसाफा करके गए, हाथ मिला के गए। एंड जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अच्छा, व्हेन द एंजल्स कम डाउन, अच्छा लेट अस अंडरस्टैंड समथिंग। व्हेन दे कम डाउन दे सी इबादा, ठीक है, दे सी नेकी दैट दे कैन हैव नॉट विटनेस्ड ऑन द स्काईज। ऐसी क्या चीज है? आखिर वो भी तो सातों आसमान भरे हैं इबादत से। Millions of angels are doing sajda, millions of angels are doing tasbih, millions of angels are doing zikr. तो आखिर फरिश्ते नीचे क्या देखने आते हैं? आखिर इंसान का मामला कैसे डिफरेंट है? You have to understand this. Our ibadah is different. They cannot witness this on the sky. Why? Because when they come down on Laylatul Qadr and when they see a sinner who is crying in tawbah, this does not happen on the skies. It doesn't happen because the angels don't have the ability to sin. They have never sinned. उन्होंने गुनाह किया ही नहीं है, वो क्या रोएंगे हिचकियों के साथ अपने गुनाहों पे? उनको पता ही नहीं है गुनाह क्या है। तो वो आते हैं, बहुत शौक से देखते हैं, ये देखो ये अजीब मखलूक है, सारा साल गुनाह करते रहते हैं, अब देखो कैसे हिचकियों से रो रहे हैं अल्लाह के आगे। Look at them, look at them, look at their सच्ची तौबा। देखो अल्लाह से कैसे मांग रहे हैं, ये कैसे इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, ठीक है। और जब अकेले आप अल्लाह के साथ तौबा कर रहे होते ना, इबादत कर रहे होते, यू आर नॉट कॉन्शियस, देयर इज नोबडी अराउंड, किसी को नहीं नजर आता कैसी हमारी शक्लें बनती होंगी ना, अजीब अजीब शक्लें, रो रो के बुरा हाल और हिचकियों के साथ, अल्लाह प्लीज बख्श दे। वो फरिश्तों को वो कितना अच्छा लगता होगा, कितनी एक अजीब म्यूजियम किस्म की चीज होगी उनके पास कि ये तो कोई अजीब ही मखलूक है। लुक एट देम, सारा साल इतने बोल्ड बने फिर रहे होते हैं और लैलतुल कदर पे कैसे ये हिचकियां ले लेके रोते हैं, क्योंकि आसमान पे कोई नहीं लेता हिचकियां, कोई नहीं, ऐसी तौबा है ही नहीं आसमान पे। वो किस चीज पे तौबा करेंगे? फरिश्तों ने कभी गुनाह ही नहीं किया, ठीक है। फिर वो देखते हैं सदका, इंसान सदका दे रहे, देन दे सी सम पीपल ऑन लैलतुल कदर, वो अपने आप को गुनाह से रोक रहा है। लैलतुल कदर है, उसको टेम्पटेशन है, उसको शैतान पुल कर रहा है, चलो चलो लेट्स गो पार्टी, चलो चलो, और वो अपने आप को रोक रहा, कह रहे नहीं आज तो लैलतुल कदर है, मैं तो आज गुनाह नहीं कर सकता, मैं तो आज कहीं नहीं जा सकता, मैं तो आज कोई गलत मूवी नहीं देख सकता, मैं तो। अब वो जब रोक रहा है, टेम्पटेशन भी तो नहीं है एंजल्स के पास। एंजल्स आर नॉट टेम्पटेड बिकॉज दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू सिन। एंजल्स आर जस्ट, आप समझे ना, रोबोटिक। उनके अंदर वो है कि सिर्फ नेकी है, उनके अंदर गुनाह करने का तो पोटेंशियल ही नहीं है।
जब गुनाह करने का पोटेंशियल नहीं है, तो टेम्पटेशन नहीं है, तो वो कितने शौक से देखते होंगे इसको, देखो कितनी इसको मुसीबत पड़ी है, दिल चाह भी रहा है, खिंच भी रहा है, फिर इसको अल्लाह की मोहब्बत वापस जानमाज पे खींच के लेकर आ रही है। तमाशा देखते हैं ना इंसानों का कि क्या मखलूक है अल्लाह तेरी, ये कैसे ये तेरे बंदे हैं जो तेरी मोहब्बत में अपने नफ्स से लड़ रहे हैं। ये भी तो जिहाद है ना, अपने नफ्स से लड़ रहे हैं। अल्लाह ये तुझसे कैसी मोहब्बत करता है, बिकॉज इट्स इंटरेस्टिंग टू देम, they don't have this concept on the skies. And then जब ये सब इनको देखते हैं ना इबादत करने वालों को, then on Laylatul Qadr they make dua for these people. They make dua for these people and they say अल्लाह इनको बख्श दे, इनको जन्नत दे दे। और होता क्या है, लैलतुल कदर के अंदर आपका खुशू, आपका तकवा, इट इज इंक्रीज्ड। जैसे हम जब उम्रे पे जाते हैं तो हमारे तकवे का लेवल कुछ और होता है। माशाल्लाह अगर इफ यू गो फॉर उम्रा इन रमजान तो तकवे का लेवल बिल्कुल ही कुछ और होता है, हज के लेवल पे पहुंच जाता है तकवा आपका, फिर हज के ऊपर तकवे का लेवल कुछ और होता है। तो ये खुशू और ये तकवा और इबादत का लुत्फ लैलतुल कदर रमजान के अंदर वैसे ही बढ़ता है, आखिरी रातों में और अल्लाह पाक इसको बढ़ा देता है, इट इज इंक्रीज। ठीक है, आवर फीलिंग्स आर डिफरेंट, वी नो दिस, हम उसको अगर आप बयान ना भी करें तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज रमजान के अंदर द वांट and the khushu and the beauty of our ibadah is just something else, and the rest of the year we struggle to attain this. अच्छा, हदीस आती है बुखारी के अंदर that there were 2 times that Jibreel alayhi salam did not enter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's house. Now this is an answer to the question where a lot of people have asked me कि जी अगर घर के अंदर पेंटिंग्स हैं, पिक्चर्स हैं और स्टैचूज हैं, हम क्या करें, फरिश्ते नहीं आते फरिश्ते घर के अंदर। अच्छा, होता क्या है, ये हदीस का मफहूम क्या बता रहा है कि at one time there was a picture of a जानदार, एक आप सल्लम के घर के अंदर कोई चादर थी, उसके ऊपर कोई पिक्चर थी एक जानदार की, फॉर इंस्टेंस एन एनिमल, उसकी पिक्चर थी। तो जिब्राइल अलैहि सलाम स्टूड आउटसाइड एंड ही सेड आई कांट कम इनसाइड। एंड द सेकंड टाइम देयर वाज अ डॉग। आप सल्लम, अब घर कैसे होते थे, खुले सहन होते थे आप सल्लम के, ये गेटेड घर तो नहीं थे, एक गेट दरवाजा, एक मेन दरवाजा, एक ऐसे तो नहीं थे, खुले सहन के अंदर क्या हुआ, कहीं से कोई कुत्ता चलता हुआ अंदर आ गया आप सल्लम के घर के अंदर, जिब्राइल अलैहिस्सलाम डिड नॉट एंटर, ही डिडंट एंटर। तो ये हदीस हमें क्या बता रही है कि जहां पे पिक्चर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, स्टैच्यूज हैं, जानवर, ये कुत्ता है, जब फरिश्ते नहीं एंटर होते। अब हम क्या करें, क्योंकि हमारे घरों के अंदर तो भरे में, लेट्स बी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं कोई पेंटिंग होगी, कहीं ना कहीं कोई प्रिंटेड बेडशीट होगी, कहीं ना कहीं हमारे पास स्टैच्यूज है, पूरे घर हमारे भरे में पेंटिंग्स हैं, पिक्चर्स हैं। क्या करें? अंडरस्टैंड, जब आप इबादत कर रहे हैं, इवन इफ यू हैव अ हाउस विद 100 bedrooms in it and you have paintings and pictures in 98 bedrooms, then you have to know that in those 98 rooms फरिश्ते enter नहीं होंगे। एक कमरा इबादत का ऐसा बना ले जहां एक पिक्चर नहीं हो, एक पेंटिंग नहीं हो, एक पिक्चर नहीं हो, एक कोई उसके अंदर इमेजरी नहीं हो, ताकि उस कमरे के अंदर बैठ के लैलतुल कदर की इबादत करें और अपनी सारी इबादतें उसी कमरे के अंदर करें, ताकि फरिश्ते आए, आके हमसे मिलें, फरिश्ते हमारे लिए दुआ करें। इसलिए एक कमरा अपने घर में ऐसा बना लें that has no paintings, no pictures, no statues in it, so that the angels can enter it. And then हदीस का मफहूम आता है कि जिसने नमाज पढ़ी लैलतुल कदर में ईमान के साथ और एहतसाब के साथ, which is उम्मीद ऑफ अजर, उसके सारे पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। लैलतुल कदर की शान क्या है, ये हमें ये सूरह कदर बता रही है कि लैलतुल कदर की शान क्या है। नाउ लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, लैलतुल कदर है क्या? ये वो रात है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। So tell me, is Independence Day more important or is independence itself more important? मुझे ये बताएं, Independence Day ज्यादा जरूरी है या आजादी itself? अगर आप कहती हैं आजादी itself, this is the correct answer, तो फिर लैलतुल कदर जब इतनी ऑनर्ड रात है, इतनी ऑनर्ड, इतनी अमेजिंग रात है, तो उस रात में जो कुरान नाजिल हुआ है उसका ऑनर आप सोच सकते हैं क्या है?
सोच सकते हैं जब लैलतुल कदर ऐसी रात है तो फिर उस रात में जो कुरान नाजिल किया गया, यू एंड आई वी कैन नॉट इमेजिन कि ये कितना अफजल कुरान है। अल्लाह हमें तौफीक अता करे कि हमारे दिल लगे इस कुरान के साथ, एंड वी आर एबल टू टेक आउट टाइम to spend time with the Quran, to understand the Quran, to understand the tafsir. और फिर लैलतुल कदर के अंदर जो एंजल्स उतरते हैं ना, they come down in their own face. अच्छा, अब शब बारात is not mentioned. What is being mentioned over here is लैलतुल कदर. तो मसनून जो हदीस है, प्रूवन हदीस से शब बारात प्रूफ नहीं होती है। जो आई थिंक 15 शबान को, रमज़ान से 15 दिन पहले वो कहते हैं कि जी शब बारात को तकदीरें नीचे उतरती है। नो, एवरीथिंग कम्स डाउन ऑन लैलतुल कदर। अच्छा, फिर अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, लैलतुल कदर में तकदीरें लिख दी अल्लाह ने 50,000 साल पहले। मजे की बात है। और अल्लाह ने लैलतुल कदर में तकदीर उतार भी रहा है, और हमें क्या कह रहे हैं कि तुम इबादत में खड़े हो जाओ, तुम पूरी रात मुझसे दुआएं मांगो। अल्लाह ने दुआ मांगनी क्यों सिखाई? जब 50,000 साल पहले तकदीर हैज बीन रिटन, तो कुछ लोग कहते हैं भाई दुआ मांग के क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर अल्लाह ने क्यों कहा हमें कि लैलतुल कदर पूरी रात जागो, मांगो मुझसे? इसलिए कि दुआज आर वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। कुछ तकदीरें होती हैं जो कि दुआ बदल देती है। दुआ और दुआ देखे असर कैसे होता है। देखिए, हमारी दुआओं के अंदर, ऑल माई लाइफ आई यूज टू स्ट्रगल विद दिस, कि मेरी दुआ के अंदर तो असर ही नहीं होता। मैं तो लेफ्ट एंड राइट लोगों को पास भागती रहती थी, आप मेरे लिए दुआ मांग दे, आप मेरे लिए दुआ मांग दे, इसलिए कि मुझे अपनी दुआओं पे यकीन ही नहीं था। पैनाडोल की गोली अगर आप खाते हैं, एंड इफ यू डोंट बिलीव दैट योर हेडेक इज गोना गो अवे, इट वोंट गो अवे। पैनाडोल की गोली, साइंस टुडे इज सेइंग that if you do not believe that something is going to heal you, it's not going to heal you. इतना पावरफुल है आपका माइंड कि वो उसके पावर को, पैनाडोल की गोली को रोक देता है। सर का दर्द रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर आपने पैनाडोल की गोली खाई और आपने कहा दिस इज नॉट गोइंग टू क्योर मी, तो आपका दर्द वैसे का वैसे ही रहेगा। ये आप आजमा के देख लें। तो हमारी दुआओं के अंदर असर कब आएगा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर बिलीफ। The day you believe in Allah, the day you trust Allah, the day you are 100% guaranteed, no question about it, Allah सुनेगा, उस दिन अल्लाह सुनेगा। ये दुआओं का पावर क्यों अल्लाह हमें सिखा रहा है? मोमिन का हथियार है दुआ। ये हमारी जिंदगियां बदल सकती है। एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु वी फील दैट वी कांट चेंज देम एंड वी कांट गेट होल्ड ऑफ देम, और हम इनका क्या करें, इनको कैसे लेकर आए दीन इस्लाम की तरफ, उनके लिए हाथ उठा के दुआ मांगे। दिस इज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ अ मोमिन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वल आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तुबुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व